My dear students, in this session we will be taking up questions of height and distance that have appeared in JAT examination in previous years. It is a very important chapter. इससे questions frequently आते रहे हैं, so revising this is very important. Now there are two most important triangles which we should remember for height and distance. One is a 30, 60, 90 वाला triangle. This angle is 60. This angle is 30, or angle opposite to smallest side is always the smallest side. Yes, that is also true. And side opposite to smallest angle, that is also smallest. So 30 degree के सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी. So if this is equal to 1 units, 60 degree के सामने वाली side will be equal to root 3 units, and 90 degree के सामने वाली side will be largest double of that of 30 degree के सामने वाली side. So 1 is to root 3 is to 2. That is the ratio of the sides for 30, 60, 90 वाला triangle. And second triangle is 90, 45, 45. That is easy triangle. 45, 45 यानी equal angles हैं, तो sides भी equal होंगी. तो if sides are 1 and 1, hypotenuse will be root 2. Okay. Now there is one special case जहाँ पे कि complementary angles को use किया जाता है. For example, this is the distance. Let us say this is distance D and this is A. And question is saying that this angle is theta and this angle is 90 minus theta. Value कुछ भी हो सकती है, 30, 60 हो सकती है, 20, 70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. But if the angles are complementary, यानी कि उनका sum 90 degrees है, two angles, let us say this angle is alpha, this is beta. So alpha plus beta, if that is equal to 90 degrees, and we need to find out the height of this tower or whatever it is. The h will be equal to the square root of this distance is d and this total distance which will be d plus a, so d into d plus a. क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं कि हाइट ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में हो कि these are the two elevation angles. One angle is theta, other is 90 minus theta, and this is h and this is x, and we need to find out distance d. So we can say that d will be equal to h into h plus x. सेम लॉजिक है, ठीक है. सो हॉरिजॉन्टली भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, वर्टिकली भी हो सकते हैं, या कोई और भी केस हो सकता है जहां पे कि एक साइड में थीटा हो, एक साइड में 90 माइनस थीटा हो. लॉजिक हमेशा सेम रहेगा. इज इट क्लियर? ठीक है. और एक स्पेशल केस विच इज आस्क्ड मेनी टाइम्स in omits, including that case is when let us say this height is A, this height is B, and top of this tower we match that with the bottom of the other tower, and similarly for the other tower. So at the intersection point, what will be this height C? That is the question that is being asked quite frequently. So this C will be equal to AB upon A plus B. AB upon A plus B. Logic क्या है इसका? Let us say this is equal to P, this distance is P, and this distance is Q. ठीक है. So if we see this triangle, for this triangle, this C and B lengths are parallel. ठीक है. So we can say C and B lengths are parallel. So triangle similar होंगे because this angle is common to both the triangles, and these angles are obviously 90 degrees. These angles are 90 degrees. So we can say that C by B will be equal to P upon P plus Q. And by the same logic, अब हम triangle change करते हैं, इस triangle के बारे में बात करें. So in this triangle, C by A will be equal to Q upon P plus Q. This is our first equation. This is second equation. दोनों को ऐड कर देते हैं, तो first plus second will be equal to C by B plus C by A is equal to P upon P plus Q plus Q upon P plus Q, और दोनों को ऐड करके 1 आ जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा, P plus Q upon P plus Q. So definitely C by B plus C by A is equal to 1, and C को कॉमन लेने तो अंदर बचेगा 1 by B
प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी, सी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी, दैट इज इक्वल टू 1, एंड हेंस यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा दैट सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. इज इट क्लियर? ओके, सो इस समझ के साथ में, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस. पाइथागोरन ट्रिपल्स तो सबको याद ही होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, a tall tower has its base at point K. 3 points A, B and C are located at a distance of 4 meters, 8 meters and 16 meters respectively from K. The angle of elevation of the top of the tower from A and C are complementary. What is the angle of elevation of the tower's top from B? There is a tower and there are 3 points A, B and C. And tower की height, let us say h है. It has been given that ABC are located at a distance of 4, 8 and 16 meters from K. So this is 4, this is 8 and this is 16. And we know कि angle of elevation of top of tower from A and C are complementary. So अगर A से angle theta होगा तो C से angle is 90 minus theta. So from that we can deduce कि h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h will be equal to square root of 4 into 16. That is square root of 64, which is 8 meters. So h आ गया 8 meters. h भी 8 meters है और distance भी 8 meters है b तक का. So definitely this angle will be equal to 45 degrees. 45 degrees का एंगल होगा. Option A is the answer. खत्म हो गया सवाल. Clear? Okay. So if you understand these few basic things about height and distance, तो कुछ questions कई बार कितने easy आ जाते हैं. This is a very sitter type question. बहुत ही आसान question है. Very doable in the exam, isn't it so? और पक्के से उतने ही मार्क्स देखे जाएगा जितना एक लंबा क्वेश्चन देखे जाएगा. ठीक है. सो दैट इज वाई हाइट एंड डिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कि कभी कभी कोई बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएगा और कभी कभी 3D वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जिनको कि टूवर्ड द लास्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए, फंसा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ परफेक्टली वर्टिकल पोल इज मार्क्ड ए. द पोल स्टैंड्स ऑन अ फ्लैट ग्राउंड एट पॉइंट डी. द पॉइंट्स बी एंड सी आर समवेयर बिटवीन ए एंड डी ऑन द पोल. From a point E located on the ground at a certain distance from D, the points A, B, C are at angles 60, 45 and 30 degrees respectively. So what is AB is to BC is to CD. Basically हमें बार बार 30, 60, 90 वाला रेशियो यूज करना है और 45 वाला भी यूज करना पड़ेगा बिकॉज 45 दिया हुआ है. बस वही है और कुछ नहीं. So this angle is 30 degree. Then there is angle 45 degree. And then angle 60 degrees. 30, 45 and 60. This is 60. This is 45 and छोटू वाला एंगल is 30 degrees. Okay. Points क्या है? Topmost point is A, bottom point is D, this point is E, and points B and C are somewhere in the middle between A and D. This is B, this is C. Okay. So from a point E located at ग्राउंड ए बी सी का एलिवेशन एंगल है 60, 45, 30. यस, दैट इज द केस. अब फटाफट से रेशियोज अप्लाई करते हैं. सो लेट अस से दिस डी ई, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 यूनिट, दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट. ठीक है. सबसे पहले एडीई ट्रायंगल में फोकस करते हैं. फोकस ऑन एडीई ट्रायंगल. एडीई ट्रायंगल में दिस एंगल इज 60 डिग्रीज. तो टॉप वाला एंगल विल बी 30 डिग्रीज बिकॉज ये तो 90 है. तो 90 है भाई. तो 30 के सामने वाला साइड 1 है, 30 के सामने वाला साइड 1 है, 60 के सामने वाला साइड विल बी इक्वल टू √3. तो AD विल बी इक्वल टू √3. क्लियर? ओके. नाउ फोकस ऑन BDE ट्रायंगल. BDE ट्रायंगल तो सिंपल है, 45, 45. तो 45 है, बेस 1 है तो BD भी 1 ही होगा. BD विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 यूनिट. तो यहां से क्या मिल रहा है हमको? दैट AD इज इक्वल टू √3, BD इज इक्वल टू 1. नाउ कमिंग टू CD वाला ट्रायंगल, CDE ट्रायंगल. CDE ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी और 60 के सामने अगर 1 है तो 30 के सामने क्या होगा? 1/√3 होगा. CD विल बी 1/√3. क्लियर? दीज आर रेशियोज. AB इज टू BC इज टू CD निकालना है हमको. AB is to BC is to CD निकालना है. AD √3 है, BD 1 है, CD 1 - √3 है.
तो BC क्या हो जाएगा, BC विल बी BD माइनस CD, तो CD इज 1/√3, BC विल बी BD माइनस CD यानी 1 माइनस 1/√3, एंड AB विल बी इक्वल टू AD माइनस BD, AD माइनस BD यानी कि √3 माइनस 1. सो दीज आर द रेशियोज. बट अभी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू तो आ नहीं रहा है, तो √3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, √3 से. तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन विल बिकम √3 इंटू √3 माइनस 1 इज टू √3 माइनस 1 इज टू 1. So √3 into √3 will be 3 minus √3 is to √3 minus 1 is to 1. ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर यही है ABBCCD का. सो यही हमारा आंसर हो जाएगा. 3 minus √3 is to √3 minus 1 is to 1. ऑप्शन D इज द आंसर. क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next is two lighthouses located at points A and B on the earth are 60 feet on the earth. Okay, so कहीं और भी हो रहे थे क्या, मार्स में होने वाले थे. are 60 feet and 40 feet tall respectively. Each lighthouse is perfectly vertical and the land connecting A and B is perfectly flat. The topmost points of lighthouses at A is A dash, lighthouse of B is B dash. Draw line segment A dash B, B dash A and let them intersect at point C dash. Drop a perpendicular from C dash to touch the earth at point C. What is the length of CC dash? समझ गए होगे, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया. और लेंथ पूछी है स्ट्रेट अवे, तो क्या आएगा? CC डैश. ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा? दिस विल बी इक्वल टू CC डैश विल बी इक्वल टू 60 और 40 है लेंथ है इनका, 40 और 60, तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट बोल रहा है, 40 और 60 है. दिस विल बी 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, दैट विल बी 2400 अपॉन 100. नीचे आ रहा है 40 प्लस 60 है, सो 24 मीटर्स. ऑप्शन सी. फीट में होगा, नॉट मीटर्स, दिस विल बी फीट बिकॉज फीट में वैल्यूज दी हैं. तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्लियर है? ओके. Next question. A boat stationed at the north of a lighthouse is making an angle of 30 degrees with the top of the lighthouse. Simultaneously, another boat stationed at the east of the same lighthouse is making an angle of 45 degrees with the top of the lighthouse. What will be the shortest distance between these two boats? The height of the lighthouse is 300 feet. Assume both the boats are of negligible dimensions. अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो एक बोट हमारी स्टेशन है नॉर्थ में, एक बोट स्टेशन है ईस्ट में, तो यहाँ पे 3D समहाउ व्यू हमें बनाना पड़ेगा. अपना जो डायग्राम बनाना पड़ेगा वो 3D बनाना पड़ेगा, 3 डायमेंशन बनाना पड़ेगा. थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है यहाँ पे. और अगर 3D डायग्राम बना रहे हैं तो कोशिश ये करेंगे कि क्योंकि 3D बना रहे हैं तो स्ट्रेट अवे लेट अस से दिस इज नॉर्थ, लेट अस से क्या नॉर्थ यहीं पे है, साउथ है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट. और फिर हमें क्या है, एक बोट स्टेशन है नॉर्थ पे, सो लेट अस से दिस इज अवर लाइट हाउस, दिस इज अवर लाइट हाउस. सो वन बोट इज नॉर्थवर्ड्स, अदर बोट इज ऑन द ईस्टर्न साइड. ठीक है, ये 90 डिग्रीज पे एंगल है, बस 3D बनाना है इसलिए ऐसा डायग्राम बनाया है. ठीक है, 3D के लिए ऐसा डायग्राम बनाया है, बट ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्रीज. तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 90 दिख नहीं रहा है बट दिस इज 90 डिग्री एंगल. क्लियर? सो नॉर्थ वाली बोट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द टॉप ऑफ द लाइट हाउस. सो दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज. Simultaneously, another boat stationed at the east is making an angle of 45 degrees with the top. So this is east direction and this angle is 45 degrees. What will be the shortest distance between these two boats? अब एक बात बताओ, नॉर्थ और ईस्ट में ये बोट्स हैं हमारी, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, एक तरह से हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, isn't it so? This value and this angle is 90 degrees. Height of the lighthouse is 300. 30 डिग्री के सामने वाला साइड इज 300. सो बेस कितना होगा? बेस कितना होगा? बेस विल बी 300√3 एंड 45 के सामने वाला साइड इज 300, तो बेस विल बी 300 ओनली. अभी 90 डिग्री का ट्रायंगल है, आई मीन राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एक साइड इज गिवन एज 300√3, द अदर साइड इज 300. सो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 300√3 का होल स्क्वायर प्लस 300 का होल स्क्वायर.
एक तरह से 300 को सेपरेट रख लो तो ज़्यादा आसान रहेगा। एक साइड √3 है, एक साइड 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 2 होगा ऑब्वियसली। 30 60 90 वाला ही ट्रायंगल बन रहा है ये तो डेफिनेटली दिस विल बी 300 into 2 which is equal to 600. Answer will be option D. Clear? Okay, easy question. एक बार डायग्राम बन गया तो उसके बाद इजी है, उससे पहले तो मुश्किल है। डायग्राम बनाना तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि जब 3D में बनाओगे, अदरवाइज 3D में देखो सब 90 डिग्री पे रखोगे तो दिखेगा ही नहीं मतलब डायग्राम प्रॉपर्ली समझ में ही नहीं आएगा, तुमको खुद को ही नहीं समझ में आएगा, किसी और को क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। There are two windows on the wall of a building that need repairs. A ladder 30 meter long is placed against a wall such that it just reaches the first window, which is 26 meters high. The foot of the ladder is at point A. After the first window is fixed, the foot of the ladder is pushed backwards to point B so that the ladder can reach the second window. The angle made by the ladder with the ground is reduced by half as a result of pushing the ladder. Distance between points A and B is what? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इसमें जुगाड़ करोगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, अदरवाइज ये क्वेश्चन फंसाएगा। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में या हाइट एंड डिस्टेंस में या बहुत सारे क्वेश्चंस में, ज्योमेट्री में भी थोड़ा सा जुगाड़, थोड़ा बहुत करना, हेरा फेरी करनी आनी चाहिए। करोगे तो ही आसानी होगी हमारे लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करना हमें आना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जब भी हम यूज़ करें ट्रिग्नोमेट्री में तो रेशियोज़ कुछ हैं, √2 √3 ऐसा रेशियोज अगर हमें कहीं पे इसके आसपास की वैल्यूज़ मिल रही हैं तो हमें डेफिनेटली मान लेना चाहिए कि ये एग्जैक्टली यही रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल कहीं पे हमारा रेशियो 1.7 आ रहा है तो इट इज अज्यूम कि दैट इज इक्वल टू √3, क्योंकि √3 मानने से क्या आसानी होगी, 30 60 90 वाला ट्रायंगल बन जाएगा अपना। √2 मानने से आसानी क्या हो सकती है, √2 के आसपास की वैल्यू आ रही है तो यानी कि हमारा मे बी शायद 90 45 45 का ट्रायंगल वहाँ पे बन रहा हो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में समझते हैं। दो वॉल्स हैं, एक लैडर है हमारी 30 मीटर की, and 30 meter long ladder is placed against a wall such that it just reaches the first window which is 26 meter high. तो पहला केस तो हमारा ये बना कि लैडर बिल्कुल पास में ही होगी बिकॉज 26 मीटर की हाइट तक पहुंच रही है, लैडर की लेंथ है 30, दिस हाइट इज 26 एंड इफ दैट इज सो तो बेस हमारा कितना हो जाने वाला है, बेस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर which is 30 minus 26 into 30 plus 26. 30 plus 26 is 56. 56 into 4 which is 224. स्क्वायर रूट 224 और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, 15 स्क्वायर इज 225, तो डेफिनेटली 15 के आसपास की वैल्यू आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 15 आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 15 आ रही है, ठीक है। सो दिस विल बी ऑलमोस्ट 15. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर द फर्स्ट विंडो इज फिक्स्ड, द फुट ऑफ द लैडर इज पुश्ड बैकवर्ड्स, यानी कि इस फुट को हम थोड़ा और पीछे की तरफ लेके गए टू पॉइंट बी, इनिशियली पॉइंट ए पे है, फिर पॉइंट बी पे लेके गए सच दैट द लैडर कैन रीच द सेकंड विंडो, सो लेट अस से दिस इज पॉइंट बी। अब लैडर कुछ ऐसा हो जाएगा एंड इट इज गिवन दैट एंगल मेड बाय द लैडर विद द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, सो इफ दिस एंगल इज 2 थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सजेस्टिंग, ओके। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, बिकॉज यहाँ पे फिर हम वैल्यूज एज्यूम करनी पड़ेगी हमें, लेट अस से एक्स से इसको पीछे लिया, दिस इज वाई, दो अननोन आ जाएंगे, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और फिर इस क्वेश्चन को या तो हम स्किप मार दें तो बेटर है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को जनरली हम थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जो हमें रेशियो वैल्यूज गिवन है, दिस इज 26, दिस इज 15, तो 26 बाई 15 क्या आ रहा है वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली ये रेशियो कितना आ रहा है, दिस इज 15 से कितना एक्स्ट्रा है, 11 एक्स्ट्रा है, इजंट इट सो, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 15 1 जा 15, बचा कितना 11, पॉइंट लगाया 110 हो गया, 15 7 जा 105, बचा 5, 15 3 जा 45, तो रेफरी 1.73 रेशियो आ रहा है विच इज इक्वल टू √3, विच इज इक्वल टू √3। और जैसे ही ये बात चमकी हमको कि ये √3 के बराबर है और ऑलमोस्ट बराबर 1.73 आ तो रहा है, ठीक है, सो √3 के बराबर है, दैट इंप्लाइज व्हाट कि दिस साइड इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू √3, विच इंप्लाइज दिस 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, और 2 थीटा अगर 60 डिग्रीज के बराबर है तो थीटा हमारा 30 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा, थीटा 30 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली वही ट्रायंगल तो है जो शिफ्ट हो गया, 2 थीटा 60 था तो ये वाला एंगल 30 था, दिस एंगल वाज 30 डिग्रीज, 30 के सामने वाला साइड 15 था और 60 के सामने वाला साइड 26 था। अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा, 30 के सामने 15 हो जाएगा एंड दिस विल बी 15 एंड दिस विल बी 26, एंड इफ दैट इज सो तो बी ए कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 11 ओनली, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन इज खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। और अगर इसकी वजह इसमें अननोन मान के करोगे तो फिर करते रह जाओगे, फिर तो करते रह जाओगे, क्लियर है, ओके।
अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मेक श्योर टू आस्क दैट एज वेल। पर्पस यही है कि तुमको अच्छे से बातें समझ में आए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख सको एग्जाम में, क्योंकि हर क्वेश्चन को छोड़ते ही रहोगे तो कब तक छोड़ोगे भाई? अल्टीमेटली सिलेक्शन पाना है तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो करने हैं ना, और ज़ैड में तो छोड़ने की भी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये एक और बड़ा समस्या है कि सवाल छोड़ दोगे तो भी नेगेटिव कर देंगे वो 8 क्वेश्चंस के बाद। तो समहाउ जुडिशियली हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। और ऑल्सो इन दैट एग्जामिनेशन, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप क्वेश्चंस 8 से ज़्यादा छोड़ रहे हो तो उस केस में यू विल बी डिडक्टेड -0.1 एंड फॉर 1 नेगेटिव इनकरेक्ट आंसर के लिए यू विल बी पनिश्ड बाई -0.25। तो इफेक्टिव डिफरेंस कितने का है? -0.15 का है। सो वी शुड ऑप्ट फॉर दोज क्वेश्चंस जहाँ पे कि हमें 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन है। उन क्वेश्चंस को जरूर हमें अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में भी, क्वांट में भी, वर्बल में भी, जिस भी सेक्शन की बात करें वहाँ पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है वहाँ पे, स्पेशली जहाँ पे 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन है। इन जनरल तुक्का लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे कि हमको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, और कभी कभी बहुत एक्सट्रीम केस में जहाँ पे कि 3 में कंफ्यूजन है, वहाँ पे भी थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, रिस्क और रिवार्ड का इक्वेशन की बात कर रहे हैं, बट 2 वाले केस में तो डेफिनेटली हमें अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 25 feet ladder is placed against the wall with its base 7 feet from the wall. 25 feet की ladder है, base is 7 feet away. So initial scenario कुछ ऐसा है, से 25 feet की ladder है, base 7 feet away है, तो बताओ हाइट कितना होगा? पाइथागोरन ट्रिपल स्ट्रेट अवे है, 7, 24, 25, 24, 25 और 7, 24 हाइट होगा। ठीक है, द बेस ऑफ द ladder is drawn out so that the top comes down by half the distance that the base is drawn out. So in this case, top comes down by half the distance that the base is drawn out. तो अगर base is drawn out by 2x distance, because इसका half करना है, that is why 2x किया हमने. In that case, the top comes down by x distance. और ladder की height तो चेंज नहीं होगी ना, वो तो 25 ही रहने वाली है। तो इक्वेशन बन गई हमारी कि 7 + 2x का होल स्क्वायर प्लस 24 - x का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं एक्सपेंड करके, बट अगेन क्या हमको ये करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में? अगेन पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते, तो वैल्यूज लगा के देखते हैं, क्योंकि इंटीजर्स हैं सारे के सारे, ऑल ऑफ देम आर इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज हैं, और डेफिनेटली इंटीजर नहीं भी होती तो अगर रेशियो इंटीजर में आ रहा है, अगर रेशियो हमारा 7, 24, 25 आ रहा है तो वहां पे भी ये चीज अप्लाई कर सकते थे, बट यहां तो डायरेक्टली इंटीजर हमें दिए हुए हैं, तो और कौन सा ट्रायंगल बन सकता है इस टाइप का? हाइपोटेन्यूज 25 है, यानी कि 5 का मल्टीपल है, तो 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल भी इज ऑल्सो पॉसिबल। 3, 4, 5 का ट्रायंगल होगा और हाइपोटेन्यूज 25 है, यानी 5 × 5 है, तो डेफिनेटली एक साइड 15 होगा और एक साइड 20 होगा। या तो ये केस बन सकता है, या यही 7, 24, 25 ही दोबारा हो जाएगा, बट 7, 24, 25 तो नहीं दिख रहा है, बिकॉज अगर 24 7 में कन्वर्ट होगा तो 17 नीचे जाएगा और ये 17 आगे जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा मामला, डबल वाला मामला नहीं बनेगा जो इक्वेशन में गिवन है कि 2x डिस्टेंस फुट सरक रहा है और टॉप इज ओनली कमिंग डाउन बाई x डिस्टेंस। तो डेफिनेटली 15, 20, 25 यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करें तो दिस इज 24, अगर 24 से दिस बिकम्स 20 तो x विल बी इक्वल टू 4, एंड इन दैट केस 2x will be equal to 8, this will become 8 + 7 15, yes that is satisfying। तो x is equal to 4 यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? डिस्टेंस इज इन द रेंज, which distance is in the range? The base of the ladder is drawn out so that the top comes down by half the distance that the base is drawn out। तो बेसिकली डिस्टेंस इज इन द रेंज, बेसिकली 2x के बारे में बात कर रहा है, 2x is equal to 8, तो 8 के बारे में बात कर रहा है। डिस्टेंस किस रेंज में होगा 8 हमारा? 2 to the 7 तो ऑब्वियसली नहीं है, 5 to 8 में 8 इंक्लूसिव नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकते, ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा, बिकॉज द वैल्यू इज 8, सो आंसर विल बी ऑप्शन ई। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 8 पे क्लोज ब्रैकेट होता तो डेफिनेटली फिर वहां पे हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाता, बट यहां पे ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ बोट साउथ ऑफ अ लाइट हाउस, अगेन डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि 3D वाला मामला लग रहा है। ठीक है, बोट साउथ ऑफ अ लाइट हाउस ऑब्जर्व्स हिज शैडो टू बी 24 meters लॉन्ग एज मेजर्ड एट द सी लेवल। On sailing 300 meters eastwards, he finds his shadow as 30 meters long, measured in the similar manner. Height of the man is 6 meters above sea level. तो height of the lighthouse above the sea level कितना होगा? What will be the height of the lighthouse? Directions: north, south,
east and west. Initially he is south of the lighthouse and then he moves eastwards. Okay. So if this is the lighthouse, initially he is southwards. So this is south. And his shadow is 24 meters long. Let us say this is the person. और तो लाइट हाउस से इसका शैडो जो बनेगा दैट विल बी 24 मीटर लॉन्ग. This will be his shadow, and this is 24 meters. Then he moves eastwards. Let us say इतना मूव करता है eastwards. ठीक है, eastwards आ गया वो. Now in this case, since he has moved eastwards, अब उसकी shadow कितना हो रहा है? 30 मीटर लॉन्ग हो गया है. और on sailing 300 meters, so this distance is 300. This is also given. This is 300. अब वो यहाँ पे खड़ा हुआ है at this point, and shadow is this 30 meters. shadow की increase हो गई लेंथ, that is 30 meters now. क्या कनेक्शन बनेगा यहाँ पे? क्या कनेक्शन बनेगा? थिंक अबाउट इट. अच्छा, ये जो एंगल है हमारा, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज अगेन, बिकॉज दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट. दिस इज नॉट ईस्ट, दिस इज नॉट ईस्ट. 1 सेकेंड, वो ईस्टवर्ड्स मूव किया है. ठीक है, सो दैट इज वाई दैट एंगल विल बी 90 डिग्रीज. ईस्टवर्ड्स मूव किया है वो. ठीक है, सो दिस इज ईस्ट. क्लियर? अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो. देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को फोकस करें, सेपरेटली बनाते हैं, तो दिस इज अ ट्रायंगल और ये हाइट है मैन की, एंड दिस इज 24 एंड हाइट इज गिवन एज 6 meters. दिस इज 6 meters. ओके, सो इफ दिस इज x and this is height h, in the larger triangle, this 6 meter height, and man's height and that of the lighthouse, they are parallel ना, एक दूसरे के parallel है. तो we can say that 6 by h will be equal to 24 upon 24 plus x. ठीक है, is the logic clear? Isn't it so? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, यही सेम प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना पड़ेगा सेकंड साइड पे, क्योंकि कोई एंगल वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है इनफैक्ट यहाँ पे, क्योंकि हमें इसीलिए शैडो गिवन है, शैडो की लेंथ गिवन है. कि छोटे ट्रायंगल में पता चल रहा है कि इफ मैन्स हाइट इज 6 देन शैडो इज 24, यानी रेशियो क्या आ रहा है? 6/24, 1/4 का रेशियो आ रहा है. तो यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू पता चल रही है, और वही tan थीटा सेम होगा फॉर हाइट एज वेल. ठीक है, फॉर द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एज वेल. क्लियर है? ओके, ठीक. बट फर्क क्या पड़ रहा है? इनिशियली दिस इज 24 शैडो पहले वाले ट्रायंगल में, बट बाद वाले ट्रायंगल में दिस कन्वर्ट्स टू 30. दिस कन्वर्ट्स टू 30. यानी कि इनिशियली जो रेशियो है हमारा वो 1:4 का है, हाइट का और शैडो का, और वो रेशियो कन्वर्ट हो जा रहा है 1:5 में. वो 1:5 में कन्वर्ट हो जा रहा है. इजंट इट सो? ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि जो डिस्टेंस है उसकी वो इंक्रीज कर रही होगी. अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, ये 6 ही रहे, अगर इसका हाईलाइट हाउस से डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, इन दैट केस क्या होगा? इफ इज मच फार्दर, दिस इज 6, दिस इज 30, तो डेफिनेट सी बात है कि इसका लाइट हाउस से डिस्टेंस इंक्रीज किया होगा, तभी तो ऐसा हुआ. और वो दिख भी रहा है कि पहले वो साउथवर्ड्स था, फिर वो 300 मीटर्स ईस्टवर्ड गया है, तब उसका डिस्टेंस इंक्रीज किया है. और डिस्टेंस में कितना इंक्रीज हुआ होगा? पहले 24 था, अब शैडो 30 हो गया, यानी कि 4 से 5 यूनिट हो गया शैडो. शैडो 4 से 5 यूनिट हो गया है, तो डिस्टेंस भी 4 से 5 यूनिट हुआ होगा, बिकॉज प्रोपोर्शनल होगा. प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा. इजंट इट सो? तो ही हैज कवर्ड 300 मीटर डिस्टेंस. एक तरीका यह है कि हम यहाँ पे एज्यूम करें, लेट अस से दिस इज 4x डिस्टेंस एंड दिस इज 5x डिस्टेंस. इफ दैट इज सो, कि ऑब्वियसली दोनों ही केसेस में पता है कि x जो हाइट है लाइट हाउस की हाइट हो जाएगी x. इन दैट केस x तो नहीं होगा, x प्लस, एक सेकेंड, x प्लस 6 हाइट होगा, x प्लस 6 हाइट होगा. ठीक है, बिकॉज अगर ये 4x है, टोटल हो जाएगा 4x प्लस 24, और डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा, क्योंकि मैन की हाइट 6 है, विच इज 1/4 ऑफ 24. तो 4x प्लस 24 डिवाइड बाई 4 करोगे, या फिर कह सकते हो 5x प्लस 30 डिवाइड बाई 5 करोगे. सो दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 6. सो लाइट हाउस का
हाइट विल बी x प्लस 6. ये 6 लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी की वजह से क्वेश्चन तुम्हारा मेक और ब्रेक हो जाएगा. और अब ऑप्शन में भी देख सकते हो कि 100, 106, 90, 96 इस तरह की वैल्यूज गिवन है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक वैल्यू एक साइड है 4x और 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है. अलग से बना देते हैं सो दैट यू कैन रिकॉल इट बेटर. दिस इज 4x, दिस इज 300 एंड दिस इज 5x. क्या रेशियो देख पा रहे हो? 3, 4, 5 दिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं 3, 4 एंड 5. तो x को छोड़ दो, बस 2 0 लगा दो यहाँ पे. कब तक x के पीछे पड़ रहोगे? तो 400, 500, 300 खत्म हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन इज अप, डन हो गया बिकॉज x इक्वल टू 100 आ गया स्ट्रेट अवे. दिख रहा है हमको x इक्वल टू 100 यानी कि 106 मीटर्स विल बी द आंसर. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ऑप्शन ई विल बी द आंसर. क्लियर है? अदरवाइज 4x 5x मान के पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे और वहां से x की वैल्यू निकालते तो उससे भी निकल जाता. बट अगर दिख रहा होगा तो ज़्यादा बेहतर है. दिख रहा है तो ज़्यादा आसान है क्योंकि फिर उसको हमें टाइम नहीं देना है, स्ट्रेट अवे हमें आंसर पता चल गया. क्लियर? ओके. सो इन दिस केस द आंसर विल बी x विल बी इक्वल टू 100 एंड height of the lighthouse above the sea level will be x plus 6 and hence 106 meters, not 100 meters. तो ये चीज भी लास्ट में कॉशियस रहना है कि 100 मार्क नहीं कर देना है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लाइट हाउस इन द सेकंड पोजीशन? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा मैन का? 5x है, दैट इज इक्वल टू 500 मीटर्स. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, two poles of height 2 meter and 3 meter are 5 meters apart. The height of the point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of the opposite pole. Again वही कहानी. Answer will be 2 into 3 upon 2 plus 3. A into B upon A plus B. So that will be 6 upon 5, 1.2 meters. Option B. Easy question. So these are all the questions of height and distance that we needed to discuss, that appeared in the previous 10 to 15 years in that examination. I believe session में आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, चीज़ें समझ में आई होंगी. और अगर किसी भी क्वेश्चन में कभी डाउट रहा हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर. और अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना है. चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा. ऑन दैट नोट, बाय बाय.